आई थिंक बच्चे को जब हम कहते हैं कि मॉडिफाई करना चाहिए तो मॉडिफाई करना नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप एक्सेप्टेंस, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कीजिए. वी शुड ऑल्सो अप्रोच टू द स्कूल्स इन दोज वेज. Hello everyone, welcome back to our channel Health First Special. So today we are with Miss Monica Dinesh. She is the founder director of Astith Center for Empowerment in Noida. She has more than 26 years in the field of special education and 15 plus years in the arena of inclusion with an aim of upliftment of education, utilizing expertise in social, educational and psychological development of children with special needs. A warm welcome to our channel, ma'am. Thank you, Divya. So, ma'am, अपने बारे में बताइए. Tell me about yourself, about your experience. अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? Okay, thank you for asking me that because अब मुझे लगता है कि जर्नी इतनी लंबी हो चुकी है कि याद भी नहीं है कि कब से शुरू हुई. It has been more than 26 years in the field now. Amazing. Yeah, जो मैं कह रही हूँ कि टिकट लगा दो मुझे अजायब घर में रख दो. So 26 is a very large span of time. तो इस दौरान काफ़ी सारे challenges, काफ़ी सारी success, काफ़ी सारे respect, काफ़ी सारा गुस्सा, बहुत सारी चीज़ों से आमना सामना हुआ है. तो the experience was with lots of ups and downs. तो मैंने अपना करियर शुरू किया था आज से 26 साल पहले with बलवंत राय मेहता and I worked only for a year there and then in real meaning I started my career with Tamanna and worked with them for 6 years and I joined as a special educator and left when I was a coordinator of B.Ed special education. I did my B.Ed also from Tamanna itself. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, मेरा इंक्लूजन की जर्नी शुरू हुई 2007 में सेंट मेरी स्कूल द्वारका के साथ. आई गेट चांस टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, to correct myself in terms of inclusive education. So the best thing was I was given lots of independence to practice inclusion and we tried our level best to do inclusion in the best way we could. और वहाँ का सिस्टम, वहाँ का मॉडल हमारा ही डिज़ाइन किया हुआ है. सो इट्स अ वेरी, I feel that it's a very wonderful model. वहाँ पे दोनों तीनों तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं. वी प्रैक्टिस इंटीग्रेशन, वी प्रैक्टिस इंक्लूजन, वी प्रैक्टिस स्पेशल एजुकेशन अलग से भी, इंडिविजुअल ऑल्सो. सो दैट्स द थिंग. देन आई जॉइंड श्री राम स्कूल नोएडा. I worked as a coordinator there also and I got opportunity to teach class 11th and 12th so-called neurotypical children psychology. And then I joined as a principal in Anant Center for Learning and Development in Kutub Institutional Area, which is again a special school. तो ज़िंदगी का पहिया जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया. So special school, then inclusion, then again special school, and then I left the job and I thought that it's high time to live your dream now. तो अब मैं अपने सपने के लिए जीना मैंने शुरू किया और उस सपने के लिए then I started अस्तित्व. वाओ, इट्स अमेजिंग मैम. फाइनली आपने अपने ड्रीम को चूज़ किया आफ्टर सो मेनी जॉब्स. ओके. सो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि आज हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इंक्लूजन सेटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज पेरेंट्स को लेकर और प्रोफेशनल्स को लेकर. तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए यही है कि हाउ डू यू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन द क्लासरूम. ओके, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना दिव्या, तो कई सारे लोगों को सिर्फ हम जब एज अ स्पेशल एजुकेटर या एज अ पेरेंट व्हेन आई थिंक ऑफ इंक्लूजन आई थिंक अबाउट माय चाइल्ड ओनली. ठीक है, माय चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल or as a special educator or any educator is educator, whether it's a special educator or normal educator, right, regular educator. हमारी जिम्मेदारी, वो स्पेशल नीड्स बच्चा तो है ही, लेकिन हमारी जिम्मेदारी वो बच्चे भी हैं जो उस स्कूल का हिस्सा है जो न्यूरोटिपिकल है. सो inclusive is a very broad thing. We have to adjust, we have to accommodate, we have to accept this child without impacting, without hurdling their growth also. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट accommodation, when we talk about taking the child with special needs in the system,
We forget that the responsibility of rest of the 35 or 25 or 40 students is also ours. So inclusion इस तरीके से होना चाहिए, जो चैलेंज मुझे समझ में आता है कि इसकी भी ज़रूरतें पूरी हो और उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो, उनकी ज़रूरतों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. At times it happens like as a special educator, मेरी responsibility the child is with special education, but as a regular teacher उसकी responsibility सारे ही बच्चे होते हैं, ठीक है. तो उस inclusion के लिए और मेरा role as a special educator, my role should be only as a facilitator. My role should be the guide for the teacher who is in the classroom. वो कैसे दोनों को साथ में लेकर के चले. So that's I think is the most important part. So वो चैलेंज तो आएगा ही और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं है. We can't say that inclusion is happening. So inclusion का मतलब ही यही है कि आप सबको साथ में लेके चलो. And now the NPEs has come, and otherwise also we all know that our government, our constitution, as a citizen, as Indian culture, we believe in inclusion. हम सबको साथ लेकर के चलने में ही विश्वास करते हैं. So inclusion is not new for us, but the strategies, the technologies, just the challenges in education setup is very new. That is true. That is true. ओके मैम, द सेकेंड क्वेश्चन इज कि आजकल पेरेंट्स को नहीं पता कि क्या प्रोसीजर है एक नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने. तो क्या प्रोसीजर है, क्या पेरेंट्स के लिए क्या स्टेप्स हो, वो आप बताइए. देखिए, आरटी तो ये कहता है कि हर स्कूल को बच्चों को, कोई भी बच्चा डिनाई नहीं होना चाहिए एडमिशन में. हम सभी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है. लेकिन या आई एम सॉरी टू से बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी कंडीशंस पे ऐसा नहीं होता. तो मैं तो यही कहूँगी, मेरी तो स्कूल से अपील है कि दे शुड इक्विप देमसेल्व्स एंड टेक द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. आई नो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप एक्सेप्टेंस, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कीजिए. एक बार आप एक्सेप्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने आते हैं उतने ले लीजिए, बट कहीं से तो शुरुआत करी जा सकती है. मे बी 1 से, मे बी 2 से, है ना. आप इतने बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल्स को आगे बढ़ना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी जाना पड़ेगा. पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपर हैंड रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई हमारे बच्चे को अगर आप डिनाई कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट, क्यों कर रहे हो. क्योंकि लीगली तो हर बच्चे को एडमिशन होना ही, क्योंकि पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा भी उस बड़े स्कूल में पढ़े या फिर नॉर्मल स्कूल में पढ़े जाके. तो जब तक ये नहीं होगा तब तक सारे स्कूल्स नहीं करेंगे. आज के टाइम पे भी हम आज राजधानी में बैठे हुए हैं, राजधानी के आसपास के इलाकों में जो आप देखें NCR रीजन्स में, वी कैन काउंट द स्कूल विद इंक्लूजन ऑन फिंगर्स, राइट. तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारा नेशनल कैपिटल भी पूरी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं आया है. हाउएवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग, चीज़ें बन रही हैं, हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही है, बट उसमें टाइम लगेगा. तो मुझे लगता है स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे शुड अप्रोच टू द स्कूल्स फॉर इंक्लूजन. पेरेंट्स भी उन्हीं स्कूल्स में अप्रोच करते हैं जहाँ उनको ऑलरेडी पता है कि इंक्लूजन हो रहा है. सो वाई नॉट ट्राइंग अदर स्कूल्स, हु नोज कि आप दूसरा स्कूल भी ले लें. और मुझे लगता है स्कूल्स के लिए की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एडमिशन्स दे. या तो उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी और उनको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि वो भी डरते होंगे ना कि कैसे हम लोग टैकल करेंगे. उनके लिए टफ है ना कि उनको पता ही नहीं है कि स्पेशल बच्चों का डील कैसे करना है, क्या करना है. और एक स्पेशल एजुकेटर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉप अप विद ऑल चिल्ड्रन. या और उसमें फिर बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटीज के आते हैं और हमारा स्पेशल एजुकेशन तो एक ही चीज़ में हमें स्पेशलाइज करता है. तो डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस के लिए इक्विप करना ज़रूरी होगा. सरकार को भी उसके लिए मदद करनी पड़ेगी कि अगर आप ले रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू, और दिस सपोर्ट वी कैन गिव यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड और योर बीइंग अ न्यू इन द फील्ड. सो दैट शुड बी देयर. ओके, अगर बच्चा हो गया एडमिशन, फिर स्कूल क्या चाहता है कि विड्रॉल करना, तो तब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? बच्चा स्कूल तब चाहता है विड्रॉल करना जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, या तो उन्होंने गलती से एडमिशन ले लिया, उनको समझ नहीं आया, या फिर बाद में उनको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हमने तो यहाँ तक सोचा था, नाउ वी आर नॉट एबल टू डील इन दैट सिचुएशन. सो अगेन आई फील दैट पेरेंट्स शुड ask them what is the problem they are facing and how we can support. Right? अगर parent is willing to support, or maybe
organizations like us, we try to help the schools to make them equip about special education, and if it is required we can support them, चाहे human resource से support करना हो, चाहे materialistic support करना हो, या modification, curriculum modification में any type of support we can give to them. So I think we should also approach to the schools in those ways, और parents को भी, see parents can be the ambassadors. तो parents बता सकते हैं कि जो भी issues आ रहे हैं we can ask organizations and government to help you out. We can call parents also as a shadow teacher. अगर वो shadow teacher afford नहीं कर पा रहे तो वो खुद आए, अपने बच्चे के साथ बैठे और अपनी help करें अपने बच्चे के लिए. बल्कि बच्चों के लिए तो अच्छा ही रहेगा, और पेरेंट के लिए भी अच्छा रहेगा कि दोनों लोग सीख रहे हैं. पेरेंट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. Okay, ma'am. It's amazing. How do you collaborate with the parents of the children with special needs to ensure their child's educational needs are met? दिव्या, मेरा मानना है कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ टीचर का या स्कूल का या स्पेशल एजुकेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. स्पेशली इन इंक्लूजन, वैसे तो सभी जगह है, तो दोनों तरफ से एफर्ट होने हैं. आई ऑलवेज टेल दैट कि अगर मुझे ये कप खिसकाना है ना, अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, एक तरीका तो ये कि मैं एक हाथ से कर लूँ, दूसरा तरीका ये है कि तुम भी इसी तरफ आ जाओ और हम दोनों इस तरह करें, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस. सो इफ पेरेंट्स एंड स्कूल एंड टीचर्स, इफ वी ऑल आर इन द सेम प्लेटफॉर्म एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, अगर हम कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो गोल अचीवमेंट बहुत ईजी हो जाता है. उस चीज़ को हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं. यहाँ पे एजुकेटर्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है टू गाइड द पेरेंट. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होना है. सो स्कूल एंड एजुकेटर शुड इन्वाइट पेरेंट्स टू कम एंड मीट, यू नो, टू सी द प्रोग्राम. कैसे उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रोफेशनल्स को उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देना चाहिए कि घर में वी आर एक्सपेक्टिंग यू. एक क्लियर कट आप एक्सपेक्टेशन बताओ पेरेंट को कि मैं आपसे ये चाहती हूँ, मैंने ये स्टार्ट किया है, आप मुझे इसमें ऐसे सपोर्ट कीजिए, और आप उनको बताइए. आई एम श्योर कि पेरेंट ज़रूर करेगा उसको, एंड इट विल हेल्प यू टू अटेन योर गोल ओनली. सो आई थिंक पेरेंट को एम्पावर करना बहुत बहुत ज़रूरी है. कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो. उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो पेरेंट का अपना डिसीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू काउंसिल देम कि भाई जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक तो काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, आई नो, या तो दोनों पेरेंट वर्किंग है, दे डोंट हैव टाइम, या फिर वो किसी को घर पे रख लेते हैं, या फिर स्पेशल एजुकेटर ले लिया, या कोई टीचर लगा दिया और उनको लगता है हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गया. तो ये सिर्फ स्पेशल पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट्स विद स्पेशल नीड्स का प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ प्रॉब्लम विद एवरी पेरेंट, है ना. तो वो जब उनके पास टाइम ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? तो वी हैव टू टेल देम दैट ठीक है, आप अपना 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटे की नौकरी को थोड़ा सा कम करके 1 घंटा तो अपने बच्चे को दे ही सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज डेवलपमेंट. बिल्कुल. How do you establish and maintain effective communication with other professionals such as educators or therapists to support the special needs? I always believe I think that's a principle, that's the basic thing in special education कि एक जना तो कर ही नहीं सकता उसको, because when we talk about special needs, उसको therapies भी चाहिए, उसको speech therapy भी चाहिए, उसको ABA भी चाहिए, उसको स्पेशल एजुकेशन भी चाहिए, उसको 1000 तरह की चीज़ें चाहिए. जो अब हम में से कोई भी अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि एक साथ 25 लोगों के साथ लड़ ले. तो वी नीड अ टीम. तो उस टीम के साथ कोलैबोरेट करने का मतलब ये है, एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, और एज ए स्पेशल एजुकेटर माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द चाइल्ड राइट. ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से देखूंगी, अगर मेरे एफर्ट्स डालने के बाद भी नहीं आ रहा, मे बी आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. हो सकता है उसका कोई फाइन मोटर का इशू हो सकता है उसका कोई सेंसरी इशू हो. ठीक है, तो जब तक हम ये आपस में टीम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो किसी भी चीज़ को पहुंच पाना, हम इट विल बी यू नो, हाँ, डिफिकल्ट. क्या इधर उधर ही घूमते रहेंगे आवारा बादल जैसे. इधर मैंने ट्राई कर लिया, उसने ट्राई कर लिया, ट्रायल एंड हिट मेथड पे नहीं चल सकता. आफ्टर
आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन्स लाइफ. तो इंक्लूसिव स्कूल में सारी चीज़ें सेटअप होना बहुत ज़रूरी है. एक स्पेशल एजुकेटर कैन नॉट डू एवरीथिंग. मतलब वहाँ पे ओटी भी होना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट भी होना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि वहाँ पे तो अलग अलग बच्चे हैं मैम. एग्जैक्टली. अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो हो सकता है स्कूल है जिसमें सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो हो सकता है उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत ना हो. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ऑटिज्म वाले बच्चे हैं या फिर आईडी वाले बच्चे हैं या ADHD वाले बच्चे हैं या LD वाले बच्चे हैं, then definitely we have to we should have that team. Yeah. Can you provide any example of successful intervention or accommodation you have implemented to support a special needs student to assess the classroom? See, there are so many things which you can do and which I have done in my classroom. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर ले और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने लगे, तो हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, हम सभी जानते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में. लाइक वी हैव डिफ़िकल्ट इक्वेशंस या फोटोसिंथेसिस अगर मुझे पढ़ाना था बच्चे को, सो टेलिंग देम दैट कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च C6H12 O6 plus 6H2 is equals to this. Sorry, ये respiration का मैंने बता दिया, and reverse is photosynthesis. तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय इफ़ आई कैन जस्ट मॉडिफाई इट, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन की जगह मैं सिर्फ उसे वर्ड इक्वेशन दे दूँ, तो क्या मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा? है ना. तो अगर मेरा स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो अगर वो पूरा इक्वेशन नहीं बता सकता है, तो कांट ही टेल मी द वर्ड. दिस इज व्हाट वी मेड द एडजस्टमेंट, वी मेड द मॉडिफिकेशंस इन आवर क्वेश्चन पेपर्स, and we have seen that the result of kids was improved, like 60%, 70% betterment. So I think बच्चे को जब हम कहते हैं कि मॉडिफाई करना चाहिए, तो मॉडिफाई करना नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम और सिलेबस और करिकुलम, इट शुड बी इन द वेज ऑफ असेसमेंट्स ऑल्सो. राइट, सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो मॉडिफिकेशंस मैम कितने, मतलब किस क्लास तक हम कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू CBSE? अकॉर्डिंग टू CBSE देखिए 8th क्लास तक तो आपका यू हैव ऑल द राइट्स टू डू वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, अब CBSE ने अभी तक पेपर मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया है, तो इसलिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 9th और 10th में पेपर मॉडिफिकेशन कर दें. लेकिन हाँ, जो CBSE या कोई भी बोर्ड हमारे बच्चों को बेनिफिट्स देता है, कंसेशंस देता है, वो हम दे ही सकते हैं. 1 घंटे पे 15 मिनट एक्स्ट्रा है, स्क्राइब है. हाँ, स्क्राइब है. लाइक ADHD and autism में, if we all know that in autism and ADHD लैंग्वेज का इशू आता ही है. सो अगर मेरा बच्चा पॉइंटर्स में याद कर रहा है, तो CBSE is accepting that. डिस्लेक्सिक है, स्पेलिंग्स के इश्यूज हो रहे हैं, तो CBSE is accepting that. This year they have also introduced calculator for our children with LD and ADHD. तो calculator class 10th में भी maths की calculations के लिए they can use calculator. Changes हो रहे हैं, होंगे. वी वांटेड कि हमारे बच्चे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे सके, बिकॉज राइटिंग इश्यूज रहते हैं, वो लिखते ऐसे हैं कि पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई वी आस्क्ड फॉर स्क्राइब ऑल्सो. तो यदि कंप्यूटर हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि हमारी वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एंड इट विल बी ए सक्सेसफुल. हाँ, थोड़ा अरेंज करने में दिक्कत होगा, आई नो दैट, रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में प्रॉब्लम होगा, बट ग्रेजुअली इट विल हैपन. मतलब आगे फ्यूचर में उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करेगी सरकार. ओके, so next question is for you. Can you describe any training or professional development you have pursued to enhance your knowledge skills in working with special needs? Of course, मैंने जब से पिछले 26 साल से मैं यही कर रही हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. आपका मोबाइल 6 महीने में, 3 महीने में अपग्रेड हो जाता है. यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैंने 26 साल पहले जो कोर्स किया था वो डिप्लोमा था स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा इन SC. उसके बाद मैंने फिर B.Ed किया है. उसके बाद मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, विच आई कम टू नो दैट यू आर ऑल्सो परसुइंग. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. देन आई डिड माई M.Ed इन स्पेशल एजुकेशन. स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम PhD scholar, still I am learning and trying to do whatever to upgrade my knowledge. Other than that, I read lots of books. I attend workshops.
जो भी मुझे ऐसा लगता है कि यस दिस वर्कशॉप इज़ न्यू, लाइक ABA जब आया था तो ABA उस टाइम पे नहीं था जब हम लोग पढ़ा करते थे. सो आई अटेंडेड ABA वर्कशॉप, आई अटेंडेड PECS वर्कशॉप. So anything which I think is new and it can be helpful for me and for my child, I definitely try to So learn learning that. never dies for you. Oh, लर्निंग तो आप जिंदगी भर करते ही रहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए. नहीं, सभी को करना ही चाहिए क्योंकि लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और कहीं ना कहीं हम न्यू स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ भी. बिल्कुल, मुझे तो लगता है आप लोगों में, जब मैं आप जैसे यूथ को देखती हूँ काम करते हुए, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू डू सो डिफरेंटली that I have learned many things observing new educators. So that's also a learning. So learning is two way. अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो I'm also learning something from you. Yes, of course. Okay, ma'am. Next question is for you. How do you involve students with special needs in the decision making process regarding their education and individualized goals? देखिए, जब हम स्पेशल नीड्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स, LD, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, IDA एंड ऑटिज्म. तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशनल नीड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं और उनको डिसीजन की बात करते हैं, तो पहले उनको उस लेवल तक आना है. उस लेवल तक आने के लिए उनको पहले डिसीजन मेकिंग सीखनी बेसिक से ही बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक विद द वेरी बेसिक स्किल्स, है ना, आप 2 ऑप्शंस लेकर के रख सकते हो. Like mothers, ये वाला ड्रेस पहनना है कि ये वाला ड्रेस पहनना है. So child can choose. So it's his decision what he wants to wear. Then maybe you can expand the array. कि अब ये 2 की जगह ये 4-5 ड्रेसेस हैं, इसमें से बताओ क्या पहनोगे. या we are going for picnic, what type of dress you want to wear. Or we are going for a birthday party, what type of dress you will wear. तो यहाँ से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि this is what I can do, I can choose, I can decide for myself. और जहाँ तक एजुकेशन की बात रही, एजुकेशन में डिसीजन लेने की बात रही, तो मुझे लगता है कि शायद हम LD बच्चों की बात करें या ADHD बच्चों की बात करें, जो दोज हु हैव रीच टू द क्लास 10th लेवल, क्लास 12th लेवल, 6th 7th में 8th में आने के बाद उनको समझ में आता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड tell that these are the subjects, these are the benefits of that subject, these are the subject, these are the losses if you do it. Like lots of children with lower cognitive ability takes very intense subjects, or children with emotional problems take very intense subjects. तो वो एक बर्डन हो जाता है. तो मुझे लगता है कि हर तरह का चीज़, आजकल जब हम बोलते हैं ना, हम करियर काउंसलिंग के हिसाब से एजुकेशन को देखते हैं, बट मुझे लगता है कि बच्चे को पर्सनैलिटी और इमोशनल और सोशल हर तरह के हिसाब से बच्चे को गाइड करना चाहिए, एंड देन लीव द डिसीजन ऑन देम. और क्या हो गया अगर वो अपना डिसीजन लेके फेल भी हो गया तो भी क्या हो गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ ईयर, दे कैन डू इट अगेन. तो हमें उनको मोटिवेशन देनी ही चाहिए. बिल्कुल, ये माइंडसेट पेरेंट्स का भी टूटना चाहिए और टीचर्स का भी टूटना चाहिए कि क्या हो गया, 1 साल खराब हुआ तो वो 1 साल का वो इतना हल्ला मचाते हैं कि मैम 1 साल बर्बाद हो गया है. वो बर्बाद नहीं हुआ. चाइल्ड हैज लर्नड इन दैट ऑल्सो हाउ टू टैकल योर फेलियर, हाउ टू टैकल. ये भी बहुत जरूरी है कि अपना फेलियर कैसे आपको टैकल करना है. आजकल मुझे लगता है कि बच्चे भूल ही गए हैं कि फेलियर को भी एक्सेप्ट कैसे करना है. That's why so many issues related to suicide, depression, anxiety disorders and so on, it's all the result of that only. It's increasing day by day. Okay ma'am, next question is for you is, how do you ensure that the children with special needs are actively engaged and participate in classroom activities and discussions? See, as a teacher, as an educator, it's my responsibility to give that opportunity and give that freedom in my classroom. For first of all, I need to sensitize everyone where I am putting my child. सबसे पहले तो बच्चे sensitize होने चाहिए, parents sensitize होने चाहिए, and the group of my team should be sensitized enough. Then I should, as an educator, it's my responsibility to know the strength and weakness of my child, my student. उसके बाद उसके वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ को देख करके मुझे पता है कि दिस इज हिज स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं उसको अपॉर्चुनिटी दे करके आई कैन एनहांस हिज और हर सेल्फ एस्टीम. लेट मी बिगिन विद दैट ओनली. जब उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा, देन आई माइट 8 बारी सही और 2 बारी में शायद थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन.
और अगर आप ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हैं तो ऐसा कुछ तो काम होगा जो आपका बच्चा विद स्पेशल नीड्स कर सकता होगा. सो स्पेशली क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ बताइए ग्रुप में कि दिस विल डू, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हिज, एंड टेक द फीडबैक फ्रीक्वेंटली. दे करके छोड़ मत दीजिए, फीडबैक लेते रहिए. सो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन. दैट्स वेरी प्रैक्टिकल. आई एम सेइंग, आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्ट्रैटेजीज. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू जस्ट, आपको खुद को अपने आप को रेडी करना है टू एंगेज द चाइल्ड. तो अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चा भी इन्वॉल्व रहेगा. ओके, मैंने बहुत देखा है कि इंक्लूसिव स्कूल्स में स्पेशल नीड्स बच्चों को नहीं लेते. जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है तो दे डोंट टेक देम टू पार्टिसिपेट इन विद द नॉर्मल बच्चे. तो फिर उसके साथ क्या कर सकते हैं हम? पहली बात तो ये बात ही गलत है, तो आप उसको इंक्लूसिव बोलिए ही नहीं. ठीक है, मानते नहीं है, क्योंकि फिर उनका परफॉर्मेंस खराब होता है ना. वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू खराब हो देयर परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी, आई थिंक इट्स अ मिथ. मुझे लगता है कि अगर एक आपके 50 बच्चे एक बड़े परफेक्शन के साथ सिंक के साथ डांस कर रहे हैं और उसमें एक इम्परफेक्ट भी रह जाता है, उसकी अपनी ब्यूटी है. वाई कांट वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दैट इम्परफेक्टनेस? वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखो ना, हैंडीक्राफ्ट को अगर आप देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हैंडीक्राफ्ट को अगर आप देखो और मशीन की चीज़ को अगर आप देखो, मशीन की चीज़ एक जैसी होती है, यूनिफॉर्मिटी मशीन वाली चीज़ में आएगा, हाथ की चीज़ में कभी नहीं आएगा. जो चीज़ यूनिक है वो यूनिक है, वो कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती. तो हमें उस यूनिकनेस को ही जिंदा रखना है. हमें ये याद रखना है कि एवरीबडी इज़ यूनिक और उसको अलाइव रखना है. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री सा बन गया है. ये है, ये IT वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, और जो उस ग्रुप में नहीं फिट हो रहा है तो वो फिर स्पेशल है. टीचर्स का बहुत कहना है, नहीं मैम ये कुछ नहीं कर सकता, मैम ये डांस नहीं कर पाएगा, ये सिंगिंग नहीं कर पाएगा. तो ऐसा हो ही नहीं सकता. वो नहीं कर पाएगा, नहीं, वो आपके लेवल तक नहीं कर पाएगा, पर अपने लेवल तक तो कर पाएगा. हमें अगर उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे तो किससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसको एस्टिमेट करे? फिर हम कैसे बाहर जाके बोलें कि उस बच्चे के लिए प्रोफेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए? तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक है और वो यहाँ तक भी गा रहा है तो क्या दिक्कत है? गाने दीजिए उसे. अभी यहाँ तक है, हो सकता है अगली बार यहाँ आ जाए, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी, एनफोर्समेंट मिलेगी, एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. फॉर इंक्लूजन देयर आर 4 थिंग्स which I wanted to tell your viewers according to your through your channel. कि इंक्लूजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है. जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे ना, इंक्लूजन जमीन पर आ ही नहीं सकता. आप हवा में ही बात करते रहोगे, जो अभी तक होता आ रहा है. तो माइंडसेट बहुत बहुत ज़रूरी है. तो you have to, first of all you need awareness about it. Second, you have to have that openness to analyze and research about it. Then you should accept it and then you should respect it. अगर आपने 4 प्रोसेस आपके पूरे हो गए हैं तो इंक्लूजन हो जाएगा, पर यही नहीं हो पा रहे. Thank you so much for amazing experience of yours and amazing knowledge for the parents as well and the professionals. So thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you.